أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ناظرین اور سامعین، آج 20 جمادی الثانی اس مبارک موقع پر میں تمام عالم نسواں کو اپنی جانب سے اور چینل حیات زہرا کی جانب سے تمام سامعین اور ناظرین کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتی ہوں۔ عزیزو، آج کا وہ مبارک اور اہم ترین دن ہے کہ جب ایک شخصیت تمام عالم نسواں کی سرداری سنبھالے ہوئے اور قرآن مجید کے سورہ کوثر کی تفسیر بن کر اس دنیا میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کا یہ سورہ نمبر 108 ہے۔ 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے اور 10 الفاظ ہیں۔ ان 10 الفاظ میں 5 الفاظ وہ ہیں جو صرف اسی سورے میں استعمال کیے گئے۔ 5 الفاظ آپ توجہ کریں اور یہ اپنی کیفیت، اپنے معنی، اپنا ترجمہ، اپنی تفسیر کے اعتبار سے اتنا اہم ترین سورہ ہے کہ شیب ابو طالب میں جب محصور کر دیا گیا تھا جناب ابو طالب کو میں خاندان کے، تو کعبے کی دیوار پر اس سورے کو چسپاں کر دیا گیا تھا۔ ہے یہ اللہ کا کلام، کوئی ہے جو اس کا جواب لے کر آئے؟ کوئی ہے جو اس سورے کا جواب لے کر آئے؟ پورے مکے میں، پورے عرب میں، خطے میں اس سورہ کوثر کا کوئی جواب نہیں لا سکا، اس لیے کہ یہ اس وقت نازل ہوا کہ جب لوگوں کے دلوں میں جناب رسالت مآب کی عظمت کو کم کرنے کی ایک ایسی فکر بد آئی تھی کہ جس کے لیے اللہ کو سورہ کوثر کو نازل کرنا پڑا۔ آپ جانتی ہیں کہ اسلام کی وہ عظیم ترین شخصیت جس کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو 2 بیٹے جناب خدیجہ سے جو دنیا میں آئے، ایک جناب قاسم اور ایک جناب عبداللہ، لیکن دونوں کو خداوند عالم نے واپس لے لیا اور اس کے بعد کامل طور پر ایک ایسے نور کو، ایک ایسی شخصیت کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آغوش پاک میں اس طرح نازل فرمایا کہ قیامت تک کے لیے پھر کوئی اس نور کا کوئی جواب نہ لا سکا۔ یہ قرآن مجید کا سورہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن میں ایک حدیث قدسی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ حدیث قدسی میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ بہت ہی مشہور و معروف یہ فقرہ ہے کہ حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ گویا کائنات کی خلقت سبب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی۔ لیکن میں عرض کروں کہ حدیث قدسی یہیں پر تمام نہیں ہوئی ہے، یہیں پر نہیں ٹھہری ہے، آگے بڑھ کر کہتی ہے لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ گویا اس سے علی کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی حدیث قدسی ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتی لولا فاطمہ لما خلقتکم، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو عزیزو، اس فقرے سے ہمیں جناب فاطمہ الزہرا
सैयदतुन्निसाइल आलमीन की अज़मत का एहसास होता है। ये नूर की खिलकत है और ऐसा नूर है कि अंबिया की पेशानियों से इस नूर को सफ़र नहीं तय करना पड़ा। मेरे जहन में एक बात आ रही है जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि पूरा इस्लाम, पूरी तारीख़ इस्लाम, पूरी दुनिया इस्लाम का महवर सिर्फ 2 सतून हैं। इन 2 सतून में एक का नाम अली है, एक का नाम फातिमा है। जिस दीन को पैगम्बर खुदा लेकर आए हैं तो इनके सतून को भी हबीब किबरिया लेकर आए हैं। एक को काबे से लेकर आए हैं, दूसरे को अर्श से लेकर आए हैं, और दोनों को हबीब किबरिया लेकर आए हैं। ये भी नूर की खिलकत है, वो भी नूर की खिलकत है। ये आया तत्हीर का मरकज़ है, ये आया तत्हीर का महवर है। और इस आया तत्हीर को भी जो सूरह अहज़ाब, कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की आयत है, आया तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत के जिसमें जनाब सैयदा की तहारत का भी ऐलान हो रहा है। कितनी पाक बीबी है। इस बीबी का किसी खातून से मुकाबला नहीं हो सकता था। अगर मुकाबला होता तो फिर किसी वक्त की रहबर और रहनुमा कोई और खातून भी बन सकती थी, लेकिन अज़ल से अबद तक आलम निस्वा की सरदारी जो बिन्ते रसूल के पास है, वो इसीलिए कि ना अली जैसा कोई अली है, ना जहरा जैसी कोई दूसरी जहरा है। तो अजीज़ों, जनाब सैयदा की तहारत के जिसके लिए आया तत्हीर नाजिल हुई है, उसकी तहारत के सिलसिले में 2-4 जुमले खिदमत में पेश करना है। और वो ये है कि आपका एक लक़ब बतूल भी है। तमाम अलक़ाब से जनाब सैयदा का एक लक़ब बतूल भी है। और बतूल की शान ये, वैसे तो कहा जाता है तारीख़ इस्लाम में देखिए तो 2 बतूल हैं, एक जनाब ईसा की वालदा है और एक हसनैन की माँ है। लेकिन दोनों हैं तो बतूल, लेकिन दोनों की अज़मत में फ़र्क है। अज़मत में फ़र्क ये है कि जब नबी की आमद का वक्त आया तो आवाज़ आई कि मरियम, ये जाए इबादत है, जाए विलादत नहीं, लिहाजा यहाँ से चली जाओ। लेकिन जब अली की आमद का वक्त आया है तो खाने काबा की दीवार ने कुशादा होकर रास्ता दिया है कि ये वो आ रहा है जो काबे की ज़ीनत है, ये वो आ रहा है जो काबे का तक़द्दुस है। अली का तक़द्दुस और ज़हरा का नूर, ये दोनों मिलकर आया तत्हीर की तफसीर बनते हैं। अब जनाब सैयदा की तहारत का कि एक मर्तबा पूछा गया कि जनाब सैयदा की तहारत की कोई इंतहा है, तो जवाब मिला जनाब सैयदा की तहारत को हम नाप नहीं सकते। और वो इसलिए भी कि मैंने जिस आयत की तिलावत की है, इन्ना तैना कल कौसर, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, मैंने आपको कौसर अता किया। थोड़े से जुमलों में कौसर और कसरत और कसीर के मायनों की वजाहत हो जाए कि कौसर लफ्ज़ लिया गया कसरत से ज़्यादा, यानी हमने तुमको जो अता किया है वो कसरत है, लेकिन कहा गया कौसर, कसीर। कौसर के मतलब यहाँ पर कसीर। तो अजीज़ों, कसीर में और कसरत में है तो रूट वर्ड तो वही है, लेकिन एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जहाँ पर कसरत होती है, होता तो बहुत है ये भी, लेकिन तादाद में इसको गिना जा सकता है। कसरत को तादाद में गिना जा सकता है, यानी ये काउंटेबल है। लेकिन कसीर को गिना नहीं जा सकता है, ये अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता है। आसमान पर कहकशां कसीर है, समंदर में पानी ये आब कसीर है, यानी जो जिस तरह आब कसीर है हम गिन नहीं सकते, फलक की कहकशां को हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको कसीर कहते हैं। सूरह कौसर क्या कह रहा है? इन्ना अतैनकल कौसर, हमने आपको नस्ल कसीर अता फरमाई है, यानी ऐसी नस्ल है कि जिसका कहीं पर इख्तिताम नहीं है, जिसका कहीं पर ठहराव नहीं है। ये ऐसी नस्ल है। और याद रखो, ये दुश्मनाने आले मोहम्मद, याद रखो कि इनको कभी अबतर का ताना न देना। जब जब ज़माने में रसूलुल्लाह को अबतर का ताना देने की कोई हौसला भी करेगा, कोई जुर्रत भी करेगा, तो सूरह कौसर बढ़कर उसकी मदद फरमाएगा। आगे बढ़ते हैं
फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ए मेरे हबीब, हमने आपको नस्ल कसीर अता फरमाई है, अब आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए आप नमाज पढ़ें, वनहर, और आप नहर करें, आप कुर्बानी दें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इंशाअल्लाह आपका दुश्मन ही जलील और ख्वार होगा, आपका दुश्मन ही अबतर होगा। मुझे बड़ा फख्र है अपनी शहजादी कौनैन पर कि जिस वक्त ये सूरह कौसर की तिलावत होती है कि इंशाअल्लाह आपका दुश्मन गोया इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन गोया दीन का दुश्मन, दीन का दुश्मन गोया खुदा का दुश्मन। जिस वक्त ये अबतर का ताना देगा, उस वक्त सूरह कौसर किसकी शान में आया है? शहजादी कौनैन की शान में आया है, खातून जन्नत की शान में नाजिल हुआ है ये सूरा। लिहाजा खातून जन्नत ने क़यामत तक के लिए ये खिदमत अंजाम दी है कि तौहीद को भी बचाया है, नबूवत को भी चमकाया है और विलायत का भी ऐलान किया है। जनाब सैयदा की खिदमात कलील मुद्दत में 18 बरस की उम्र में वो कर दिया इस बिन्ते पैगंबर ने जो 950 बरस की उम्र में, 950 बरस की हिदायत में जनाब नूह नहीं कर सके, अंबिया और मुरसलीन नहीं कर सके। वो बिन्ते पैगंबर ने जनाब सैयदा की खिलकत जो नूर से हुई है, बस उस पर 2-4 जुमले मैं आपकी खिदमत में और आपके अज़ान आली की कर दूं। सपोर्ट इसलिए कि क्या है जनाब सैयदा, सूरह कद्र भी आजिज़ है अदरा के फातिमा ज़हरा की तफसीर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर। क्या कहा जा रहा है? ये लैलतुल क़द्र, ये कौन सा लैलतुल क़द्र है? वमा अदराका, नहीं अदराक हो सकता, हम नहीं समझ सकते, हमको अदराक नहीं, हमको मारिफत नहीं, हमारा इरफान नहीं है कि जनाब सैयदा को समझा जा सके। बस अगर हमारे 5वें इमाम हमारी मदद न फरमाते, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम हमारी मदद न फरमाते, तो हमको ये भी इल्म ना होता कि अज़मत खातून जन्नत क्या है। जब आपसे किसी सहाबी ने पूछा कि फर्जंद रसूल आप फरमाएं कि ये लैलतुल क़द्र क्या है, वमा अदराका, तुमने पढ़ा नहीं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमको अदराक नहीं हो सकता, ये समझ ही में नहीं आ सकता कि लैलतुल क़द्र क्या है। लेकिन जब साहबी ने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए हमारी समझ में आ जाए, तो क्या बेहतरीन जुमला हमारे 5वें इमाम ने फरमाया है, और वो क़यामत तक के लिए एक हकीकत है। और वो जुमला ये है कि आप खड़े होते हैं, खड़े होकर रुकू करते हैं, और रुकू के आलम में आप फरमाते हैं खुदा की कसम, उसके करम, उसके जलाल की कसम, कि सूरह कद्र किसी और की नहीं, मेरी दादी फातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुआ है, और इसका अदराक किसी इंसान को नसीब नहीं है। अगर अदराक हो जाए तो अल्लाह के ऊपर वाजिब हो जाता है कि वो उसे मनसब इमामत पर फाइज कर दे। गोया मासूम की बस ये अजमत है, ये मासूम का मकाम है। साहिब इस्मत इंसान ही, साहिब इस्मत लोग ही शहजादी कौनैन का इरफान हासिल कर सकते हैं। ये नूर नबूवत है, यानी नबूवत क्या है? ये भी नूर है। पैगंबर अरबी जिसके लिए कहा गया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया है। तो जब जनाब रसूल खुदा को नूर से खल्क़ किया, बशर की सूरत में नाजिल हुए हैं। और सैयदतुन निसाइल आलमीन कौन है? रसूलुल्लाह की बेटी है, यानी नूर रसूल है, नूर की बेटी भी नूर है, नूर का शौहर भी नूर है, नूर के बेटे भी नूर हैं। ये पंजतने पाक हैं जो नूरुन अला नूर हैं, नूरुन अला नूर हैं। आज वही नूरानी माहौल, आज उसी नूरानी महफिल में हम एक मर्तबा फिर तमाम सामीन को और तमाम नाजरीन को अपनी जानिब से और चैनल की जानिब से हम मुबारकबाद और तहनीत पेश करते हैं, और एक अहद करते हैं, और एक इल्तिजा और दुआ और गुजारिश भी करते हैं कि परवरदिगार आज की इस मुबारक तारीख़ में तमाम आलम निस्मा को ये शऊर अता फरमा दे कि शहज़ादी कौनैन
کہ آگے اپنی گود پھیلا کر، اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں کہ اپنے بچوں کے صدقے میں، اپنی آل کے صدقے میں ہم تمام عالم نسواں کو وہ شعور عطا کر دے کہ ہم آپ کی کنیز بننے کے قابل ہو جائیں، اور اس دنیا کے بعد جب ہم آخرت میں قدم رکھیں تو اس آخرت میں بھی ہم آپ کی کنیز بن کر شہزادی کونین سرخرو ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔